Hello students, how are you all? So I hope you all are doing good. So students, we have started, as I am showing you on the screen, with the chapter number 6, okay, and we have done some concepts of division, like properties of division, and some multiplication facts and the division facts, okay. So today we are going to continue with the same, okay. So multiplication facts and division facts that I am showing you here, that we have already done, and some questions I have given you as a homework. So I hope you all are doing your homework very well, okay, and in neat and clean handwriting, in a proper manner, with sharp pencil and on one line notebook, okay. Most of the students are asking me about the notebook, but beta, I have already told you in the beginning of the session that you have to use only one line notebook for mathematics also, not like class 3 that you are using square boxes notebook, okay. So now moving next, our next topic is, okay, so there are properties of division, though we have already done it, but we are going to just recall it, okay. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी डिवीजन की क्या थी? जब हमारा जो डिवाइज़र है वो 1 हो, व्हेन आवर डिवाइज़र इज़ 1, तो हमारा जो आंसर है, आंसर मीन्स क्वोशंट, जो हमारा क्वोशंट है वो हमेशा किसके इक्वल आता है? डिविडेंड, ओके। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल फर्स्ट दिया 8 डिवाइडेड बाई 1, सो 8 इज़ द डिविडेंड एंड द 1 इज़ द डिवाइज़र, इज इक्वल टू 8। जो इज इक्वल टू 8 आया है, दैट 8 इज आवर क्वोशंट, सो दैट मीन्स डिविडेंड और क्वोशंट क्या है? इक्वल, ओके। सो अगर हमारा डिवाइज़र 1 है, सो हमारा, अगर डिवाइज़र 1 है, सो तो देन हमारा क्वोशंट, दैट मीन्स क्वोशंट, नॉट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मीन्स हो गया कि किसी तरह का प्रश्न पूछना, हम क्वेश्चन में क्वोशंट, क्वेश्चन, ठीक है। क्वोशंट जो है वो क्या आएगा? सेम एज डिविडेंड, ओके। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हेन द डिवाइज़र इज सेम नंबर, is the same number as the dividend, the quotient will be 1. yes, अगर हमारा डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों सेम नंबर के होंगे, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है 6 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स अगर हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, दैन जो हमारा आंसर है, हमारा क्वोशंट है, वो हमेशा क्या आएगा? 1, ओके। थर्ड वन, व्हेन द डिविडेंड इज 0 and the divisor is any number other than the 0, the quotient will be 0, ओके। जब हमारा जो डिविडेंड है 0 हो और डिवाइज़र कोई भी नंबर हो, लेकिन वो 0 नहीं होगा, दैट मीन्स अगर जो हमारा डिविडेंड है वो 0 है, बट हमारा डिवाइज़र कोई भी नंबर हो अदर देन 0, देन द क्वोशंट विल ऑलवेज बी, और द आंसर विल ऑलवेज बी 0, ओके। जैसे 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0, okay. So as you all can see, there is a note, the students are advised to revise the multiplication tables learnt earlier. So it is the special advice from the book as well as from my side also, that you must know the tables up to 20 at least on your tips if you want to do the division properly and the multiplication also, okay. So now moving next, the next topic is divide 67,042 by 9 and check your answer, okay. So before starting this division, I am going to just tell you how you will do the division, okay, and then we will start with an exercise, okay. So just look at the board I am showing you right now, okay. So this is my board, it's quite little small, but I'll just try to complete the sum, okay. So here we are given a question, suppose हमें क्वेश्चन दिया है 93 डिवाइडेड बाय 3, ओके। सो अब इसे सॉल्व करने सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा, ये देखिए, ये हमारा डिवाइज़र है, दैट इज़ आवर डिविडेंड, ऑल ऑफ यू नो दैट ना, दिस इज़ आवर डिवाइज़र एंड दिस इज़ आवर
डिविडेंड। तो बेटा जब हम डिवाइड शुरू करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, जो हमारा लेफ्ट मोस्ट, जो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट मोस्ट मीन्स जो सबसे लेफ्ट में नंबर होता है, दैट मीन्स इसके अंदर जो हमारा लेफ्ट मोस्ट नंबर होता है उसको हम देखते हैं कि वो हमारे डिवाइज़र से कितना, उसको हम काउंट करेंगे। मतलब अब हम 3 का टेबल वहाँ तक रीड करेंगे जहाँ पे जो हमारा लेफ्ट मोस्ट नंबर है या तो वो 3 के टेबल में इक्वल आता हो या तो वो उससे छोटा हो, नियरेस्ट छोटा हो। सो अगर हम 3 का टेबल देखें, आई एम जस्ट राइटिंग इट, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग अप टू 5 ओनली। सो देखिए बेटा, अब हमें 3 का टेबल रीड करना है जहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है हमारा 9 हो या 9 से छोटा हो, लोअर मतलब नियरेस्ट छोटा हो। तो दैट में अगर 3 का टेबल देखिए, 3 3 ज़ा 9 होता है। सो वी विल राइट 3, इंस्पाइट ऑफ राइटिंग हियर आई एम राइटिंग हियर, 3 3 ज़ा 9। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इट। ओके, हम इसमें डिवीजन में अब क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट। 9 माइनस 9 इज 0। ओके, नाउ अब हमारे पास यहाँ 0 हो गया। वी कान सॉल्व इट विद द 0, बट हमारे पास यहाँ पे अभी एक नंबर बचा है। सो वी विल टेक डाउन दिस नंबर 3 डाउनवर्ड्स, सो इट बिकेम 0 3, दैट मीन्स इट इज़ 3 नाउ। सो अगेन वी विल रीड द टेबल ऑफ 3 जहाँ पे 3 आता हो या 3 से छोटा लिएस्ट। सो ऑल ऑफ यू नो इट्स ईजी वन। 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल को अगर हम रीड करते हैं, आप ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, सो 3 का टेबल अगर हम 1 पे पढ़े तो 3 1 ज़ा 3, सो 3 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 0 3 और 3 सेम थिंग। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, 3 minus 3 is 0. So 31 is our quotient, this is our divisor, this is our dividend, and 0 is our remainder. Okay, so I hope now you know how to do the calculation. First of all हमने read किया 3 का table, the leftmost number that is that should be least smallest number nearest, और दैट शुड बी 9, और 9 या तो वो 9 से छोटा होता या तो वो 9 होता। ओके, सो तो 9 3 3 ज़ा 9, 9 में से 9 माइनस के 0, बट अभी तक हमारी कैलकुलेशन पूरी नहीं है बिकॉज वी आर हैविंग 1 मोर डिजिट इन द डिविडेंड। सो वी विल टेक डाउन दैट डिजिट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ एरो, एंड नाउ वी विल अगेन रीड द टेबल ऑफ 3 अप टू 3। सो 3 1 ज़ा 3, so 3 minus 3 is 0. So our quotient is 31 and the remainder is 0. So this is how we are going to do the division. Okay, so I am just going to show you a video so that the concept of division is clear to you all and you don't have any kind of doubts. Those who are having doubts earlier, so it will be clear to you all properly. Okay, so just wait. So now this is the video, just listen and observe everything very carefully. The division of a 2-digit number by a 1-digit number. Let us join them. Children, there are 5 steps to simple division. Let us see these steps while finding the quotient for 97 divided by 2. Step 1 is to compare the digits. We compare the leftmost digit of the dividend with the divisor. Here, yes students, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे डिजिट्स को। सो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसमें भी देखिए कौन सा है, 9। ओके, एंड कोइंसिडेंटली अवर नंबर वाज आल्सो 9, बट हेयर द डिवाइज़र इज़ 2। तो अब हमें देखना है कि 2 के टेबल में 9 कहाँ आता है। अगर 9 या तो 9 आए मतलब इक्वल टू 9,
और लेस देन 9, नियरेस्ट लेस देन 9, nearest number less than 9. Okay, so let's see. The leftmost digit is the digit in the tens place, that is 9. 9 is greater than 2, and therefore we can divide 9 by 2. So, step 2 is ओके, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू कि जैसे हमने बेटा यहाँ पे 9 देखा है, एग्जैक्टली वैसे हमें ये भी देखना है जो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट हो वो हमारे डिवाइज़र से क्या हो, बड़ा होना चाहिए. ओके, अगर वो हमारे डिवाइज़र से छोटा है सो देन वी विल टेक द अनदर नंबर अलॉन्ग विद द फर्स्ट वन. अगर हमारा सपोज यहाँ पे 297 है, वहाँ उसकी जगह मैं यहाँ पे 17 दिया होता. सो व्हाट विल वी डू, आई विल जस्ट शो यू. Wait, okay, on this sheet. Okay, so here in the video we are given 97 divided by 2. So first of all हमने क्या देखना है, तो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो हमारे डिवाइज़र से बड़ा हो. ओके, सपोज अगर यहाँ पे 97 की जगह we have to divide by 17. So लेफ्ट मोस्ट डिजिट is 1 and 1 is less than 2. 1 जो है हमारा 2 से छोटा है. सो इन दैट केस व्हाट विल वी डू, हम 2 को 1 से अब डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 2 के टेबल में 1 आएगा ही नहीं. सो इन दैट केस हम क्या लेते हैं, जो नेक्स्ट डिजिट है उसको भी साथ ले लेते हैं. ओके, बट इन द राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू डिवाइड विद द सिंगल डिजिट एंड देन वी विल मूव अलॉन्ग विद द 2 digit number. Okay, so let's get back to the video again. Yes. Doing the division. Here, as the divisor is 2, we use the table of 2's to find a product which is equal to or less than and nearest to the digit of the dividend, that is 9. So, the nearest product is 8. Hence, we write 4 above 9. Step 3 is to multiply 4 by 2. As we know, 4 into 2 is equal to 8. We write the number 8 in the tens column under 9. Step 4 is to subtract 8 from 9, which is equal to 1. We write this 1 in the tens column. Now, step 5 is to bring down the next digit, that is 7. After bringing down the digit, we repeat steps 1 to 5 again till there are no more digits to bring down. ओके बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 2 को कंपेयर किया 9 से, एज द 9 इज़ ग्रेटर देन 2. सो हमने 2 का टेबल वहाँ तक रीड किया जहाँ पे 9 आता हो या 9 से जो लीस्ट स्मॉलेस्ट है वो नंबर है. सो ऑल ऑफ यू नो दैट द टेबल ऑफ 2, इन द टेबल ऑफ 2 वी आर द 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, ऑल ऑफ यू नो दैट. और 9 से छोटा कौन सा नंबर है जो वहाँ पे आता है, नियरेस्ट छोटा, दैट इज़ 8. 2 4s are 8. So that's why they have written 4 in the quotient and 9 minus 8. So after subtracting 8 from 9 we get 1. ओके, हमारे पास 1 आंसर आ गया. उसके बाद वी आर हैविंग 7 लेफ्ट. अभी हमारे पास डिविडेंड में एक और नंबर पड़ा है ना, दैट इज़ 7. तो हमने 7 को नीचे ले आए. सो नाउ द नंबर बिकेम 17. अब अगेन जैसे हमने 9 को सॉल्व किया था वही उसी मेथड से आगे 17 को भी सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. So, here we again compare 17
and 2. Here, 17 is greater than 2. So, we can divide 17 by 2. Here, we use the table of 2's such that the product is less than or equal to and nearest to 17. The nearest product is 16. So, we write 8 above the 7. As we know, 8 into 2 is equal to 16. Write the number 16 under 17. Next, subtract 16 from 17, which is equal to 1. Write 1 in the ones column. Now, there are no more digits to bring down. We have finished our division. The remainder here is 1. ओके सो नाउ अब देखा आपने कैसे इन्होंने सॉल्व किया. सो हेयर द 48 इज़ द कोशेंट, 1 इज़ द रिमाइंडर एंड 2 इज़ द डिवाइज़र, और जो 97 है दैट इज़ आवर डिविडेंड. ओके नाउ बेटा नाउ वी आर हैविंग 1 इन द रिमाइंडर. अभी हमारे पास 1 है लेकिन ऊपर चाहे हमारे पास कोई नंबर नहीं है. अब इसको हम सॉल्व क्यों नहीं करते, इसके जस्ट 2 रीजंस है. द फर्स्ट वन इज़ दिस कि अब हमारे पास नीचे ब्रिंग डाउन करने के लिए, जैसे कि इस वीडियो में भी बताया कि दैट वी डोंट हैव एनी अदर नंबर टू ब्रिंग डाउन. ब्रिंग डाउन मीन्स कि हमें अब नीचे लाने के लिए हमारे पास कोई और नंबर नहीं है. दैट्स वाई हमने इसको आगे सॉल्व नहीं किया. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दिस, नाउ वी आर हैविंग 1 एज द रिमाइंडर. नाउ वी आर हैविंग 1 एज द रिमाइंडर. अब अगर हम 2 के टेबल में 1 आता है, नो, यस, नो, हमारे नो 2 के टेबल में 1 नहीं आता. सो दैट मीन्स अब इस 1 को हम किसी भी तरह से क्या है सॉल्व नहीं कर सकते. दैट मीन्स वी कांट डिवाइड. सो दैट्स वाई we will left the sum here and the 1 will be our remainder. Okay, so I'm just going to tell you again the same method of doing the sum so that the concept is clear properly to you all. Here in the book the question was 97 divided by 2. Okay, you can write the question here also and here also, whatever you wish, wherever you wish you can write. Okay, so I wish choose to write here, so that's why I am going to write it here. Okay, so first of all हम क्या करेंगे, 2 का टेबल रीड करेंगे जहाँ पे 9. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है कि जो हमारा डिवाइज़र है दैट इज़ 2 शुड बी लेस देन आवर डिविडेंड, लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड. सपोज अगर वो हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज़ स्मॉलर देन द डिविडेंड, देन वी विल टेक द अनदर लेफ्ट मोस्ट डिजिट अलॉन्ग विथ इट. Okay, so now we will read the table of 2. जहाँ पे 9 आता हो या लीस्ट और द नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, नियरेस्ट लीस्ट नंबर देन 9, कोई ऐसा नंबर जो कि 9 से पास हो लेकिन छोटा हो. ओके, सो एज वी ऑल नो द टेबल ऑफ 2, so I'm just writing the answer. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4 are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. So this is the table of 2. Okay, so now in truth table as you can see there is no 9. 2 के टेबल में 9 कहीं भी नहीं है. So in that case हम उसका smallest number, लीस्ट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ 8 को लेंगे. एंड 8 इज़ ऑन 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. सो दैट मीन्स अगर हम 4 लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 8. सो नाउ अब हमने 8 लिख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 8 with 9. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 8 from 9.
and 1 will be the answer. Okay, so can we divide 1 with 2 now? No. So in that case what will we do? We will bring down the next number down. हम अब नेक्स्ट नंबर है जो उसको नीचे ले आएंगे, दैट इज़ 17. हमारा जो नेक्स्ट नंबर है 17, हम उसको हम नीचे ले आए. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू रीड द टेबल ऑफ 2 जहाँ पे 17 आता हो और या तो उसका छोटा उससे लीस्ट नंबर बट नियरेस्ट लीस्ट नंबर हमारा 17 के कौन सा है. So if we can see here we are having 16. Okay, so 16 is at 2 ones are 2, 1 2 3 4 5 6 7 8. So 2 8s are 16. Okay, so now we will again minus it and after subtracting we will get 1. So can now we are having no other number to bring down. अब हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हम नीचे ला सके बेटा. So that's in that case what will we do? We will leave the sum here. Okay, so now अगर आपको कहीं okay, one more most important thing is here is कि हमें अगर कहीं लिखा है कि write down divide and write the quotient and remainder, in that case बेटा what we have to do, you have to write the quotient and the remainder separately. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस कैलकुलेशन शो कर दी तो मैम अपने आप देख लेंगे दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ द रिमाइंडर. नो. एंड इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन इन विच इट इज़ आस्क्ड दैट यू मस्ट राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, सो यू मस्ट राइट इट सेपरेटली. ओके, जैसे कि मैंने इसमें पूछा कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. So now you will separately write quotient is equal to 48 and the remainder is equal to 1. Okay, so just remember this question. Okay, देखिए in this question quotient is 48, remainder is 1, dividend. Okay, just I'm erasing it and then I'll tell you. Okay, quotient is 48, remainder is 1, dividend is 97 and the divisor is 2. Okay, अब हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं. सपोज इफ़ दे हैव गिवन, ये आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है 6.2 में, उसमें आपको है कि नेट यू हैव टू आफ्टर डिवीजन you have to find out the question and remainder. Okay, अब आपको ये पता लग गई क्वेश्चन रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करता है. सपोज इट इज़ ऑल्सो गिवन, देन चेक योर आंसर. फिर आपको बोला गया है दैट यू मस्ट चेक द आंसर्स ऑल्सो, कि दैट जो आपने आंसर निकाला है क्या वो सही है. ओके, सो इन दैट केस बेटा हाउ वी विल कैलकुलेट, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर. सो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. Dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. Okay, so this is the formula for checking, to check whether your solution is correct or not. आपको ये फॉर्मूला किस लिए होता है, चेक करने के लिए होता है कि हमारा जो आंसर आया क्वेश्चन और रिमाइंडर आया दैट इज़ करेक्ट और नॉट. ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट इन द बुक ऑल्सो. ओके, एज यू कैन सी नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला. डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर plus remainder. Okay, so this is how we are going to solve it. Okay, so I'm just, let's start. Okay, so this is the, just give me a second, divisor plus remainder. Okay, so dividend हमारे पास कितना, अब now we will put the values only. dividend हमारे पास कितना था, अगर आपको याद हो, डिविडेंड हमारे पास कितना था 97, डिविडेंड वाज 97 इज इक्वल टू डिवाइज़र हमारा कितना था
2, क्वेश्चन कितना आया था 48, द रिमाइंडर वॉज +1. ओके, सो दिस वॉज इट ना. डिविडेंड हमारा कितना था 97, डिवाइजर वॉज 2, क्वेश्चन वॉज 48 एंड द रिमाइंडर लेफ्ट वॉज 1. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. ओके, इसका बेटा क्या रीज़न होता है, दैट मीन्स हमारी जो इन सबको कैलकुलेट करके 97 आना चाहिए. अगर ये दोनों आपस में इक्वल हुए, सो दैट मीन्स आवर आंसर इज, आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट. दैट मीन्स आवर डिवीजन इज करेक्ट. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. The 97 is as it is here. So first of all, what we are going to do is, we are going to multiply 2 and 48. Okay. So now we are going to multiply. First of all, we will write the formula. Then we are going to formula is dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. Okay, so now we have put the value 97, that is dividend is equal to 2 multiplied by 48 plus remainder. So now after multiplying 2 with 48, what would be the answer? 96. क्या आएगा हमारा आंसर 96. ओके, सो हमने अभी तो यही सॉल्व किया ना बेटा. सो 1 इज लेफ्ट हेयर, सो +1. अब हमारे पास ये आ गया. नाउ 1 इज लेफ्ट ना. सो आफ्टर एडिंग 96 + 1 इज इक्वल टू 97. और ये हमारा डिविडेंड कितना था 97. सो दैट मीन्स आवर डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट आवर आंसर वॉज करेक्ट. Okay, so I am just going to show you the complete sum. This was it. Quotient was 48, remainder was 1, dividend was 97. Okay, so for checking, sorry, and divisor was 2. So for checking or to check the answer or to check the solution, what we will do, we will write it like this. Dividend, this is the formula, dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. So now हमने फिर क्या किया, वैल्यू पुट की. डिविडेंड कितना था हमारा 97 एज इट इज़. देन इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना था 2, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़. देन क्वोशंट हमारा कितना आया था 48, तो हमने एज इट इज़ 48 लिख दिया, प्लस एज इट इज़ एंड रिमाइंडर. रिमाइंडर कितना आया था हमारा 1. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज 97 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 1. ओके, सो उसके बाद 97 हमने एज इट इज़ वैसे लिख दिया. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू 96. 96 इज देयर, प्लस एज इट इज़ एंड 1 एज इट इज़. Now 96 plus 1 is 97. So that means it is equal to the dividend. Okay, so if they both are equal, so that means our solution is correct. Okay, so this is the formula that we are going to use to calculate to check the answer in our, देखिए, in our division. Okay, as you can see in example 1, divide 67,042 by 9, then check your answer. So in check your answer करने के लिए उन्होंने यही फॉर्मूला यूज़ किया, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. So now after multiplying so this is the formula, and moving next, you have to find out in question exercise number 6.2, the question is given, find the quotient and the remainder. So in that means आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करने के बाद आपको क्वोशंट और जो रिमाइंडर है वो अलग अलग लिखना है. क्वोशंट और रिमाइंडर क्या करना है, अलग अलग मेंशन करना है. दैट डजंट मीन कि जस्ट अगर सॉल्यूशन में लिखा है तो वहीं पे क्यू एन आर इज़ इनफ. नो,
After this division, showing the division, you will separately write quotient. Quotient with proper spelling. QUOTIENT quotient is equal to this, and remainder 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 is equal to this. Okay. So I hope now you have understood how to do the division. So your homework for today is that you have to do the first two sums, only first two sums of exercise 6.2, and you have to write that quotient and the remainder separately. Okay class, so this is enough for today, and tomorrow we will start with exercise 6.2, and you will do the first two sums by yourself only and check your answers from the back side. Okay, so good day everyone.